All right. To start with, uh, let's start with the story. The story is about Apgar score. Now, this was in 1950s. Whenever a baby was born, the nurses or the doctors didn't have a standardized way of quickly identifying if the newborn baby is how is his health? Is he good, or does he have any problems? So Dr. Virginia Apgar, she started to she firstly realized that there's a crucial gap in this case of newborns, because every hospital had their own way of telling if a newborn is healthy or not. Right? So in a country, if there are 100 hospitals, then every hospital will have its own way of telling that this baby is healthy or not, right? So Dr. Virginia identified that this is not how it should be. There should be a standardized way of telling about this, all right? And to to do that, she created something called as an Apgar score, which I believe, in fact, most of us who are in this call right now, when they were born, they had an APGAR score, which was given to them by the hospital. Right? They don't share that information with us, but usually they do check this. All right. So, and the way she did that was by seeing thousands of newborns, and gathering information about them, and then trying to understand what is the pattern, or trying to analyze that data to come up with an algorithm which can basically tell if a baby is healthy or not. Okay. Keeping that story in back of our mind, let's start today's discussion about supervised learning. To uh, understand exactly what supervised learning is, first let's understand what is machine learning. Okay, so machine learning is a very important part of data science, and these are basic things that every data scientist are expected to know, right? So what is machine learning and how is it different from a traditional programming? Okay. So if you have a programming background, then you must have seen some code earlier. But even if you don't have, you have seen some computer softwares, right? एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या फिर कंप्यूटर प्रोग्राम, एग्जांपल लेते हैं कैलकुलेटर. कैलकुलेटर में आप एक इनपुट देते हो, यू जस्ट टेल 3 + 3, एंड देन यू टेल what is the rule of addition. If you want to add, then you take that 3 and then maybe add 111 into it. Then that is how you do an addition, or whatever the rule there is, right? So there's a rule of addition, there is a rule of multiplication, how to multiply, how to divide. So you code that rule to that calculator program, so that it takes input of that input from the user and applies those rules and gives an output. In this case, the output is an calculated value of whatever input was given. If 3 + 3 is given, then 6 is the output, because sum kaise karna hai, that rule is already created. Okay, now this is really basic example, because we have done calculation so many times, or addition so many times, that it becomes natural for us. Okay, but still you have to create some rules for computer so that it knows how to do the addition, how to do the subtraction, how to do the multiplication. Okay. Whereas in machine learning, what happens is you take the input, you say 3 + 3 is the input, and the output is 6. All right. You do not tell the rule. You don't tell how to do the summation. Okay. You tell 3 + 3 is 6, then you say 3 + 1 is 4, then you say maybe 3 + 5 is 8, and so on. Okay. You give multiple inputs, you give multiple outputs, and computer is going to figure out what are these rules, how are these rules generated. Okay, that is machine learning. Specifically, this is supervised learning, but in machine learning, this is what you would be doing most of the times. Okay, when I say you, it's the computer, right? So you give an input, you also give the output.
All right. So this output is predefined. Example, let's say you have an image और उस image में there's a dog. Now that image is an input, dog is an output, right? So you give image, you also give dog to machine learning and or this program, and it will tell you the rules. You maybe computer has come up with a new rule such as a dog with, we already know some rules, right? The dog has two eyes, long nose, furry skin most of the times. It has ears on the sides of it, and then it has a certain shape. It has four legs, a tail, and so on, right? These are some rules that we have created for ourselves to know what's a dog. But computer, जब वो खुद के लिए rules बनाएगा, it will create its own rule and it will try to basically apply those rules to identify whenever a new dog comes in. If there's an image जिसका output आपको पता नहीं, you just give it to the computer. Computer will apply his rules and tell you the output. So that is why we need this machine learning. So that एक बार input दे दिया, एक बार output दे दिया, वो rules खुद ही define कर लेगा खुद आपके लिए. Alright. Now this is more generic method. अभी यहाँ पर क्या है? ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग में इनपुट है, रूल्स है. अभी अगर इसमें से एक भी रूल चेंज होता है तो आपका आउटपुट पूरा चेंज हो जाता है. करेक्ट. तो ऑल्सो this is not robust in terms of if this mapping changes between input and output, the rules also changes. If the बहुत सारे moving parts है यहाँ पर, okay? But in machine learning, you just have to give input and output. It will come up with the rules. Even if the rules change, if tomorrow you start having new breed of a new dog breed, machine learning, if you give input and output, it will be able to create rules for that new dog too. But every time there's a new dog, you have to create rules, and these rules can be really complex many times, right? How many इतने सारे rules आप add करोगे ना? There'll be a limitation to that. So that's why you use machine learning in some of the problems that we are going to look today. आज हम लोग कुछ problems के बारे में discuss करेंगे. वहां पर machine learning use क्यों करते हैं या फिर कैसे करते हैं उसके बारे में discuss करेंगे. On high level, this is the difference between traditional programming and machine learning. All right. जब हम examples देखेंगे तब और clear होगा. So machine learning या फिर uh, learning, there are two main types. One is supervised learning and second is unsupervised learning. सुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है? आप लोग एक आपका जो डेटा रहता है उसमें लेबल्स बोलते हैं उसको. ओके, व्हाट लेबल्स क्या होता है वो सब कुछ मैं बताता हूँ आपको. लेकिन सुपरवाइज लर्निंग में ये होता है कि इनपुट भी पता है आपको, आउटपुट भी पता है, आप कंप्यूटर को देते हो और कंप्यूटर खुद से रूल्स डिफाइन कर लेगा. ओके, दिस इज अ सुपरवाइज लर्निंग एग्जांपल बाय द वे, जस्ट टू बी वेरी प्रिसाइज लाइक आई सेड, राइट? ये सुपरवाइज लर्निंग है, इनपुट पता है, आउटपुट पता है, और उसके ऊपर से आप रूल्स बनाओगे. एंड या फिर आप कुछ मैंने से आप दैट इज द कंप्यूटर, दैट कंप्यूटर इज गोइंग टू लर्न सम पैटर्न्स. ओके, ऑलराइट. सो ये इनपुट को ये आउटपुट आता है, ये इनपुट को ये आउटपुट आता है, तो वो पैटर्न्स खुद ही डिफाइन करेगा या फिर खुद ही ये करेगा, वो डिस्कवर करेगा और कुछ रूल्स बनाएगा अपने लिए. दैट इज अ सुपरवाइज लर्निंग. गोल क्या है सुपरवाइज लर्निंग का? जो आपका इनपुट है और जो आपका आउटपुट है उसके बीच में क्या रिलेशनशिप है, उस रिलेशनशिप को फाइंड आउट करना या फिर उसको एनालाइज करना या फिर उसको अंडरस्टैंड करना. दैट इज द गोल ऑफ सुपरवाइज लर्निंग. राइट. ओके, so that is the goal of supervised learning. We'll see examples, it will become more clear, but still जब हम लोग examples देखेंगे और आपको अगर समझ में नहीं आता है, make sure you ask me. ठीक है, very important topics. तो सुपरवाइज लर्निंग में लेबल डेटा होता है, इनपुट आउटपुट पता होता है आपको, और सुपरवाइज लर्निंग का काम इतना होता है कि रिलेशनशिप फाइंड आउट करना, इनपुट और आउटपुट के बीच में रिलेशनशिप क्या है. अनसुपरवाइज लर्निंग ऑन द अदर हैंड, इसमें आउटपुट के बारे में कुछ पता नहीं होता आपको, आपके पास सिर्फ डेटा होता है, इनपुट डेटा होता है. और कंप्यूटर को जब आप ये डेटा देते हो तो कंप्यूटर क्या करेगा, कुछ अल्गोरिथम्स यूज करके
इस डेटा के अंदर कुछ पैटर्न होगा तो वो पैटर्न आइडेंटिफाई करेगा, रिलेशनशिप विद इन द डेटा, डेटा के अंदर ही कुछ रिलेशनशिप रहेंगे, वो आइडेंटिफाई करके आपको ग्रुप्स बना के देगा। या फिर एक अ, अ, जो भी पैटर्न रहेगा पैटर्न आइडेंटिफाई करके देगा। बट यहाँ पर देर इज नो आउटपुट और देर इज नो लेबल डेटा। ओके, टू बी वेरी प्रिसाइज इसको बोलते हैं लेबल डेटा। लेबल डेटा का मतलब होता है आपको इनपुट भी पता है, आपको आउटपुट भी पता है। अनलेबल डेटा का मतलब होता है यू ओनली हैव इनपुट, यू डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट द आउटपुट। सुपरवाइज में लेबल डेटा यूज होता है, अनसुपरवाइज में अनलेबल डेटा यूज होता है। ओके, दोनों कौन सी चीज कहाँ पे यूज करनी है वो आपके प्रोजेक्ट पे डिपेंड करेगा, या फिर वो आपके प्रॉब्लम पे डिपेंड करेगा, आप कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो, तब आपको कौन सा मेथड यूज करना है। ऑलराइट, अगर आपको पता करना है कि हाउसेस के प्राइजेस कितने होंगे बेस्ड ऑन हाउसेस की इंफॉर्मेशन, जैसे कि हाउस का साइज कितना है, लॉट साइज कितना है, एरिया कितना है, बेडरूम्स कितने हैं, कौन से फ्लोर पे, ये सारी इंफॉर्मेशन जब आपको दी गई है, तो अगर और आपको प्रेडिक्ट करना है कि हाउस का प्राइस कितना है, तो आप प्रेडिक्शन एल्गोरिथम्स जो कि सुपरवाइज लर्निंग में आते हैं वो यूज करोगे। अनसुपरवाइज लर्निंग में क्या आता है, अगर आपके पास बहुत सारा डेटा है जो कस्टमर्स के बारे में है और आपको कस्टमर्स को ग्रुप करना है, हो सकता है एक ऐसा कस्टमर हो, एक ग्रुप ऐसा हो जो बहुत ही ज्यादा आपके पास से चीजें बाय करता होगा, एक वो ग्रुप रहेगा। फिर एक ग्रुप ऐसा रहेगा जो बहुत कम बार आता है और बहुत कम बाय करता है। तो ये आइडेंटिफाई क्यों करना है, क्योंकि आपको एज अ बिजनेस ये वांट टू सेंड सम ऑफर्स, तो ऑफर्स आप उन्हीं को भेजोगे जो आपके लिए वैल्यूएबल है, जो नॉट वैल्यूएबल है उनको क्यों ऑफर्स भेजोगे, राइट। अगर हम लोग ट्रेडिशनल एग्जांपल देखें, जो हम लोग बिलबोर्ड्स जानते हैं, जब हम लोग ड्राइविंग करते हैं तब लेफ्ट साइड में आपको बोर्ड्स दिखते हैं अलग अलग, राइट। सो अगर आप एसबी रोड से नीचे आते हैं तो राइट साइड में ऊपर आपको बोर्ड्स दिखते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो ज्वेलर्स के होते हैं, राइट। तो वहां पर जो बिलबोर्ड दिखाया है, वो बिलबोर्ड जितने भी लोग वो रोड से जा रहे हैं उनको दिखाई दे रहा है, राइट, वो बिलबोर्ड। हम्म। लेकिन अगर मुझे वो बिलबोर्ड सिर्फ उन लोगों को दिखाना है जो लोग सच में खरीदने वाले हैं, तो उसके लिए मुझे उनके डिवाइसेस तक का एक्सेस चाहिए, आई नीड टू गेट एक्सेस टू देयर डिवाइसेस सो दैट आई कैन पुश द एडवर्टाइजमेंट्स। ओके, तो वहां पर उस केस में हम लोग अनसुपरवाइज्ड लर्निंग यूज करके वी फर्स्ट आइडेंटिफाई व्हाट आर द पीपल हु आर मोस्ट वैल्यूबल फॉर मी, और उन्हीं को एडवर्टाइजमेंट पुश की जाएगी। यू विल नॉट पुट अ बिल बोर्ड ताकि सब लोग देख सके उसको, यू विल बी वेरी स्ट्रेटेजिक। और एज यू कैन इमेजिन पुटिंग अप अ बिल बोर्ड इज एक्सपेंसिव, बट अगर आप कुछ स्पेसिफिक लोगों को ये ऑफर सेंड करते हो, इट्स मच चीपर देन दैट। ऑलराइट, हम लोग फिर से एग्जांपल देखेंगे तो और क्लियर होगा। ऑलराइट, ठीक है, आई होप यू ऑल आर टेकिंग नोट्स। तो लेट्स स्टार्ट विद सुपरवाइज्ड लर्निंग। सुपरवाइज्ड लर्निंग में दो टाइप्स होते हैं, क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन। क्लासिफिकेशन हम लोग तब यूज करते हैं जब हमारे पास कैटेगरिकल डेटा होता है आउटपुट में। हमारा जो आउटपुट होता है वो कैटेगरिकल डेटा होता है। सबको याद है कैटेगरिकल डेटा क्या होता है, लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था, टेक्स्ट इंफॉर्मेशन, या फिर किसी के नाम, या फिर इज इट अ डॉग, कैट, दैट दैट थिंग, करेक्ट। और क्या क्या होता है, कलर्स, आई कलर, ऑल ऑफ दैट इज कैटेगरिकल डेटा। कैटेगरिकल डेटा में दो टाइप होते हैं, ऑर्डिनल और नॉमिनल। वो सब डिटेल्स में हम लोग अभी नहीं जाएंगे, हमने लास्ट टाइम पढ़ लिया था उसको। ओके, तो क्लासिफिकेशन हम लोग तब यूज करते हैं जब हमारा आउटपुट है वो कैटेगरिकल डेटा है। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दिया है, इफ एन ईमेल इज अ स्पैम और नॉट स्पैम, राइट, ट्रू और फॉल्स। बुलियन याद होगा अगर आपको, लास्ट सेशन में कैन रिकॉल, लास्ट सेशन में हमने बुलियन के बारे में पढ़ा था, ट्रू और फॉल्स, करेक्ट। तो दिस इज व्हाट दैट इज, ट्रू और फॉल्स जब हमें प्रेडिक्ट करना है तब हम लोग क्लासिफिकेशन यूज करते हैं। ओके, focus on how I am using the terms here. Okay, prediction. We are doing a prediction. We are doing a prediction of true or false. That is the example of a classification here.
We are going to predict if an image is a dog or not. That is again an example of classification. Similar lines, but when we have numerical data, right, we can have both numerical and categorical data. जब हमें numerical data predict करना है, तब हम लोग regression यूज करते हैं. एग्जाम्पल जैसे कि हाउस का प्राइस कितना है, करेक्ट. और क्या क्या न्यूमेरिकल डेटा थे लास्ट टाइम, अगर आपको याद होगा तो लास्ट सेशन में हमने क्या क्या न्यूमेरिकल डेटा देखे थे. एनीवन? व्हाट आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ न्यूमेरिकल डेटा? weight of person, वेट ऑफ द पर्सन, करेक्ट. व्हाट एल्स? इफ यू कैन टेल मी द एज. करेक्ट. मार्क्स ऑफ द पर्सन, ऑल ऑफ दैट, दीज आर ऑल न्यूमेरिकल. अगर आपको ये प्रेडिक्ट करना है न्यूमेरिकल वैल्यूज या फिर क्वांटिटेटिव वैल्यूज, तो आप रिग्रेशन यूज करते हो. ओके. अभी हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे और इट विल बिकम मोर क्लियर. तो क्लासिफिकेशन का एग्जाम्पल देखते हैं. इमेजिन करो आपके पास बहुत सारे बॉल्स है अलग अलग कलर के, ठीक है. और यू बेसिकली हैव थ्री डिफरेंट टाइप ऑफ बॉल्स इन योर प्लेग्राउंड. ओके. तो कुछ रेड है, कुछ ब्लू है और कुछ ग्रीन है. आपका काम है ये बॉल को देखना और बताना कि what color it is. So you can obviously do this because you are an adult. Imagine there is a kid who is a 5-year old or a 7-year old. For him, you have to first tell that this is red, this is blue, this is green. Correct? Same thing. Computers को भी अगर आपको कुछ सिखाना है, in this case, this is what we are teaching the child. We are teaching a child how to identify colors. All right. So if you tell him that this is red color, this is blue color, this is green color, and if you show the ball, he will be able to identify you. आप एक red ball दोगे उसके हाथ में, then he'll look at that ball and think. When he's thinking, what he's trying to do really is he's trying to recall कि past में मैंने कभी इस color को देखा था क्या, right? और then he'll trying to recall from his memory. Okay, so this is a red one. This is a green color. Correct. Similarly, machine learning को जब मैंने बोला पास्ट में ही विल हैव टू रिकॉल सेम थिंग. फर्स्ट ही मस्ट हैव सीन समथिंग, करेक्ट. जब तक उसको पता ही नहीं होता रेड कलर होता क्या है, तब तक वो आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाएगा. सो इसीलिए इसको सुपरवाइज्ड बोलते हैं, क्योंकि देयर इज अ सुपरविजन. आप पहले उसको बताते हो कि ये कलर का मतलब होता है रेड, ये कलर का मतलब होता है ग्रीन. सेम वे मशीन लर्निंग में भी अगर आपके पास एक इमेज है, आप एक इमेज दोगे. पहले तो इमेजिन की क्लीन स्लेट है, कंप्यूटर को कुछ भी नहीं पता, डॉग नहीं पता, कैट नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, एक क्लीन स्लेट है. सबसे पहले आप एक इमेज दोगे कंप्यूटर को एंड आप इमेज देख के बोलोगे ये इमेज, दिस इमेज इज ऑफ अ डॉग. Then you give computer another image and then tell this is a cat. Then you give maybe 10 more images and tell them that these are dogs, and then give 10 more images of cats, these are cats. तो ये एग्जाम्पल्स जो है वो आप कंप्यूटर को दे रहे हो. जब आप एग्जाम्पल्स दे रहे हो तब आप इनपुट बता रहे हो इमेज, तब आपको उसको आउटपुट भी बता रहे हो. क्या है इस केस में? डॉग, कैट और वॉट एवर द एनिमल दैट यू आर ट्राइंग टू टीच द कंप्यूटर. ओके. सेम वे एक बार आपने कंप्यूटर को बता दिया, मे बी 10-20 is a very small subset. You have to show millions of such images and tell them that this image is of a dog, this image is of a cat and so on. ये सारे images कंप्यूटर अपने मेमोरी में स्टोर करेगा और उससे सीखने की कोशिश करेगा. सेम वे जैसे बच्चे ने सीखने की कोशिश की कि कलर कौन सा है रेड, कलर कौन सा है ग्रीन, सेम वे कंप्यूटर इज गोइंग टू लर्न अबाउट दोज इमेजेस एंड लर्न अबाउट व्हाट्स अ डॉग, व्हाट्स अ कैट, राइट, व्हाट्स अ बर्ड. ऑल ऑफ दैट इट इज गोइंग टू लर्न फ्रॉम दैट पर्टिकुलर इमेज. लेकिन उसके पहले हमें बताना पड़ेगा कंप्यूटर को. Now, because we are telling the computer about input and output, this comes under supervised learning. And because we are predicting a categorical variable here,
What's a categorical variable? What type of animal it is. Is it a dog? Is it a cat? Is it a bird? So that's why this is called as classification. Classification, we are classifying the categories. Okay. Now, I want to pause here for a couple of seconds and check if you understand what is classification. Classification का मतलब समझ में आ रहा है आपको? या do you want me to explain it again? So this comes under supervised learning. सुपरवाइज लर्निंग का सबसे पहला एग्जांपल क्लासिफिकेशन का है. हम लोग क्लासिफिकेशन के अलग अलग अल्गोरिथम्स पढ़ेंगे. डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, सपोर्ट वेक्टर मशीन्स. ठीक है, तो क्लासिफिकेशन आपको समझ में आ जाना चाहिए. सबसे पहले क्लासिफिकेशन होता क्या है. ऑल राइट, I'll just pause here to see if you guys are able to understand classification. ये इमेज है आपका, ये इनपुट है, और ये लेबल, इसको लेबल बोलते हैं या फिर आउटपुट भी बोलते हैं, राइट. तो एक इमेज दोगे, ये बताओगे लेबल, दिस इज अ डॉग, दिस इज अ कैट, दिस इज अ डॉग. ऐसे बहुत सारे रहेंगे आपके पास. ठीक है, और इनके बारे में मत देखो. तो एक बार ये कंप्यूटर को आप लोग ये सेट दे दोगे या फिर ये डेटा दे दोगे, कंप्यूटर विल लर्न अबाउट द इनपुट एंड आउटपुट. इन दोनों के बीच में क्या मैपिंग है. हाउ डज अ डॉग लुक, हाउ डज अ कैट लुक, इन दोनों के बीच में क्या मैपिंग है. इनपुट और आउटपुट के बीच में क्या रिलेशनशिप है. ये रिलेशनशिप कंप्यूटर लर्न करेगा. एक बार उसने लर्न कर लिया रिलेशनशिप क्या है, तब उसको अगर आपने नया इमेज दे दिया जो उसने पहले कभी देखा नहीं है, फिर भी वो प्रेडिक्ट कर पाएगा दिस इज अ कैट. By looking at this image, he'll be able to predict that this is a dog because he has not seen this particular image, but he has seen similar images. उसको मैप करना आता है. करेक्ट. Yes, sir. Yes. Yes, sir. ओके, सो दिस इज व्हाट इज क्लासिफिकेशन. यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए क्लासिफिकेशन के. एक पिक्चर को देख के बताना इफ इट इज अ कैट और अ डॉग और एनी अदर एनिमल. एक मेल को पढ़ के बताना इज इट अ स्पैम और नॉट अ स्पैम. ठीक है. वेदर को देख के, राइट, क्लाउड्स कितने हैं, विंड की स्पीड कितनी है, और टेम्परेचर कितना है, ह्यूमिडिटी कितनी है वेदर में अभी, ये सारी इंफॉर्मेशन को लेके जब आप प्रेडिक्ट करते हो वेदर इट इज गोइंग टू रेन और नॉट, दैट इज ऑल्सो टाइप ऑफ अ क्लासिफिकेशन. राइट, तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को आप बताओगे कि ये मेरा वेदर डेटा है और ये मेरे इस दिन में रेनिंग हुआ था. राइट, सो व्हाट द कंप्यूटर इज गोइंग टू लर्न इज हिस्टोरिकली जब विंड इतना था, जब क्लाउड इतना था, जब ह्यूमिडिटी इतनी थी, तब बारिश हुई थी. ओके, तो आप मुझे बता रहे हो आज ह्यूमिडिटी इतनी है, आज क्लाउड्स इतने हैं, आज विंड इतना है. तो कंप्यूटर एक बताएगा कि इज इट गोइंग टू रेन और नॉट. वो बेसिकली एक प्रोबेबिलिटी देगा, बोलेगा विथ 90% चांस इट इज गोइंग टू रेन, विथ 10% चांस इट इज गोइंग टू रेन, सो ऑन. ओके, अगेन रेन और नॉट रेन दैट्स एन आउटपुट. क्लासिफिकेशन कर रहे हैं या फिर रिग्रेशन कर रहे हैं, ये पता कैसे चलता है, आपके आउटपुट से पता चलता है. व्हाट आर यू ट्राइंग टू प्रेडिक्ट. एक और एग्जांपल, अगर आप बैंक में जाते हो और बैंक को डिसाइड करना होता है कि लोन देना है नहीं देना है. ओके, एंड द वे इट डिसाइड्स इज बेस्ड ऑन योर कैपेसिटी टू रीपे द लोन. आपको अगर लोन दिया जाएगा तो आप उसको रीपे करोगे कि नहीं करोगे, वही इंपॉर्टेंट है बैंक के लिए. बैंक डज नॉट केयर अबाउट योर एज, बैंक डज नॉट केयर अबाउट योर gender, bank does not care about your background or anything. Only it cares is whether this person will be able to repay the loan or not. तो उस केस में क्या करेंगे, वो क्या करेंगे, वो लोग हिस्टोरिकली जाएंगे. ठीक है, आप तो पहली बार लोन लेने के लिए गए, लेकिन आप जैसे पहले भी बहुत सारे लोग गए होंगे लोन लेने के लिए. फिर वो लोग देखेंगे कि आपका आपके जैसा कोई और सिमिलर तो नहीं रहेगा, एग्जैक्ट तो नहीं रहेगा कोई, बट मे बी समवन सिमिलर, सिमिलर एज, एज थोड़ा सा इधर उधर, फिर मे बी समवन विद सिमिलर बैकग्राउंड, सिमिलर सैलरी एंड सो ऑन, राइट. तो ये सब कुछ लेके वो प्रेडिक्ट करेंगे कि इफ यू आर गोइंग टू रीपे द लोन और नॉट. एंड इफ देयर कंप्यूटर सेज दैट दिस पर्सन इज गोइंग टू रीपे द लोन, देन दे विल गिव यू द लोन. यहाँ पर क्या हो रहा है, वी आर ट्राइंग टू प्रेडिक्ट इफ द पर्सन इज गोइंग टू रीपे और नॉट. तो दिस इज ऑल्सो क्लासिफिकेशन. एक ट्वीट पढ़ लिया,
कंप्यूटर को आपने बोला whether this is a positive or a negative tweet, that will also be an classification. Reading the tweet, it will predict if this is a positive or negative tweet. Can someone give me an example of a classification based on the understanding that we did just now? Tell me the input and also tell me the output. You can type your answers here. इनपुट क्या रहेगा और आउटपुट क्या रहेगा? क्लासिफिकेशन है कि नहीं, किससे पता चलता है? आउटपुट वेरिएबल से। आउटपुट वेरिएबल आपका कैटेगरिकल होना चाहिए। इनपुट कुछ भी हो सकता है। इनपुट कैन बी टेक्स्ट, इनपुट कैन बी न्यूमेरिकल, इनपुट कैन बी इमेज, इनपुट कैन बी अ वीडियो, इनपुट कैन बी एनीथिंग। आपका आउटपुट डिसाइड करता है इफ दिस इज क्लासिफिकेशन और नॉट। ओके, नाउ टेल मी अ एग्जांपल ऑफ क्लासिफिकेशन. Okay, input voices and classify whether that is an output. क्या रहेगा इसका? वॉइस ऑफ अ मेल और फीमेल, करेक्ट. आप कंप्यूटर को बताओगे दैट दिस इज अ क्लिप, और कंप्यूटर आपको प्रेडिक्ट करके देगा इफ दिस क्लिप इज ऑफ अ मेल और अ फीमेल वॉइस. व्हाट एल्स? फिजिकल टेस्ट रिजल्ट्स, पॉजिटिव और नेगेटिव. फिजिकल टेस्ट रिजल्ट्स की बात हो रही, इनपुट क्या है यहाँ पर? दिस इज आउटपुट, पॉजिटिव और नेगेटिव. बट व्हाट्स द इनपुट? टेल मी लाइक दिस, ऐसे बताओ मुझे, व्हाट्स द इनपुट एंड व्हाट्स द आउटपुट? योगिता, विनीत, सुनील, शीतल. ओके, आउटपुट. आउटपुट नंबर्स. क्लासिफिकेशन की बात हो रही है. नंबर, फर्स्टली नंबर्स आर न्यूमेरिकल वैल्यूज, तो हम लोग क्लासीफाई कैसे करेंगे? क्लासिफिकेशन इज डिसाइडेड बाय द आउटपुट, करेक्ट. कैटेगरिकल वेरिएबल चाहिए आपको आउटपुट में सबसे पहले तो. सो नंबर इज नॉट अ क्लासिफिकेशन वेरिएबल, कैटेगरिकल वेरिएबल. यस, करेक्ट. इनपुट इज अ टेस्ट रिपोर्ट, आउटपुट इज अ टेस्ट रिजल्ट. ओके, what test? Can you give more details about this, Ekta? Uh, for example, sir, COVID test results and the reports of the individuals. Whether that person is positive or negative COVID, correct. Okay. Niharika. Okay, Ishan says input is a vehicle and output is it a car or a bike? Correct. Akshay says input is a body structure and output is, I don't think Akshay has told the output. Niharika says input is a neat result. Output is whether the person has passed or not. Correct. That's an example of classification. Ishan says okay. Sheetal says input is a vehicle. Akshay, output is a man or woman. Body structure, correct. Weather data and turn on or flight or not. Take off the, correct. So weather data की ओर से you just predict if I should be school progress card based on the numerical, pass or fail, right? So that's a good example again. So you get an idea. आपको जो output रहेगा वो decide करेगा if it's a classification or a regression. Your input can be anything. Input can be this data. Input can be anything basically, right? So good. I think you guys understand. Another type of supervised learning is called as regression. Everything remains the same except output आपका भी change हो रहा है. अभी आपका output रहेगा numerical value. Example लेते हैं. Imagine करो कि आपके पास अलग अलग तरह कलर, अलग अलग साइज के बलून्स हैं, और बलून्स को जब आप फिल करोगे, right? Maybe you'll fill some light gas like helium or something, which will make the balloon go high, correct? आप बलून को छोड़ोगे तो ऊपर जाएगा, you if you fill certain type of gas in it. तो
आप क्या करोगे, सबसे पहले आपके पास अलग अलग साइज के बलून से आप बलून्स को फिल करोगे और उसको छोड़ोगे, इट विल गो सम कुछ हाइट पे जाएंगे वो। ऑलराइट। जब भी आप बलून्स को फिल कर रहे हो तब आपके पास बलून का साइज है और बलून कितना ऊपर जा रहा है वो डेटा आप क्या लिखते जा रहे हो, करेक्ट। तो उससे क्या होगा, आपको रिलेशनशिप पता चलेगा बलून का साइज कितना है और वो कितना ऊपर जा रहा है, हाइट। वो रिलेशनशिप जब आप एक फॉर्मूला जनरेट करोगे, फिर मैंने से आप इट्स अ कंप्यूटर विच गोइंग टू क्रिएट दैट रिलेशनशिप फॉर यू, राइट। सो जब बलून का डायमीटर होता है मे बी 10 सेंटीमीटर, तब ये जाता है 10 मीटर ऊपर। जब बलून का साइज डायमीटर होता है 25 सेंटीमीटर, मे बी दिस गोज 100 मीटर्स अप, करेक्ट। सो रिग्रेशन में आपका जो आउटपुट है दैट हैज टू बी न्यूमेरिक। इन दिस केस एग्जांपल ऑफ दैट बलून्स एंड डिफरेंट साइज वी आर चेकिंग इज द कितना हाइट कितना ऊपर जाने वाला है। ओके, दैट इज व्हाट यू वांट टू प्रेडिक्ट। टू प्रेडिक्ट दैट you will have to know input output both. Tomorrow if someone gives me a balloon which is having a diameter of 25 centimeter, using my knowledge of historically seen how big a balloon should be and how much height it is going, I can tell कि 25 सेंटीमीटर वाला कितना ऊपर जाएगा। मुझे उसको फुला के ऊपर भेजने की जरूरत नहीं है। आई कैन ऑलरेडी टेल यू, उसको फुलाने के पहले ही मैं बता सकता हूँ मे बी ये कितना ऊपर जाने वाला है, करेक्ट। सो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिग्रेशन। You want to guess the numerical value. In this case, it's a balloon. एक और एग्जांपल देखते हैं। इमेजिन करो आपके पास स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन है और वो स्टूडेंट्स कितना घंटा पढ़ाई कर रहे हैं, उसके ऊपर से आप एग्जाम के स्कोर्स लिख रहे हो। ओके, लास्ट ईयर की एक बैच थी। लास्ट ईयर के बैच में स्टूडेंट से मैंने पूछा कि आप कितना पढ़ते थे और उन्होंने बताया कि इतना इतना पढ़ते थे और उनका स्कोर क्या आया था वो भी मुझे पता है पहले से। तो मैं इस बैच में अगर कोई बताता है कि आई स्टडी 10 आवर्स और 20 आवर्स, वॉट एवर नंबर ऑफ आवर्स, वो अगर मुझे बताते हैं, आई कैन प्रेडिक्ट कि उतना स्कोर कितना होने वाला है। दिस इज अ वेरी क्रूड एग्जाम्पल, बट ऑब्वियसली एग्जैक्ट गेस तो नहीं होगा, बट समवेयर अराउंड दैट वैल्यू आई कैन गेट, करेक्ट। आई कैन एक्सपेक्ट कि इतना वैल्यू इतना स्कोर आ सकता है स्टूडेंट का बेस्ड ऑन हाउ मच टाइम ही स्पेंडिंग, राइट। नाउ how did i how did I do that? I created a mathematical formula from my historically seen students। स्टूडेंट्स मेरे पास इतने थे, इन्होंने इतना इतना पढ़ाई किया, इतना इतना स्कोर आया इनका। तो अगर एक नया स्टूडेंट इतना पढ़ रहा है तो एक फॉर्मूला बनाया मैंने, नंबर ऑफ आवर्स मल्टीप्लाई किया उसको मे बी 10 से 20 से, और फिर उसको डिवाइड किया विद सम आर्बिट्री नंबर, और फिर उसके बाद प्लस एडिशन कुछ किया मैंने। तो एक फॉर्मूला बनाया मैथमेटिकल। अगर जब भी मेरे पास एक नया स्टूडेंट आता है, इफ ही टेल्स मी हाउ मच ही स्टडीज, मैं वो फॉर्मूला में वो वैल्यू डाल देता हूँ, उससे मुझे कुछ आउटपुट आ रहा है, राइट। सो दैट आउटपुट वॉट एवर आई गेट इज द exam score. It's a numerical value. So this is again an example of regression. Again, regression is decided by the output. आपका आउटपुट अगर न्यूमेरिकल है तो इट्स अ रिग्रेशन, एंड दिस कुड बी इनपुट कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर ईयर्स ऑफ एजुकेशन है और इनकम है। अगर 4 साल का ईयर्स ऑफ एजुकेशन होगा तो इसका इनकम $80,000 है। 5 साल का होगा तो 91,000 है। 0 एक्सपीरियंस है तो 42,000 है। 2 एक्सपीरियंस है तो 55,000 एंड सो ऑन। ओके, ऐसे बहुत सारे मेरे पास ट्रेनिंग डेटा है। ये सारा ट्रेनिंग डेटा लेके आई लर्न अ फॉर्मूला, और वो फॉर्मूला मैं यहाँ पर इंसर्ट कर दूंगा जब someone tells me that is how much salary is expected for someone who is 4 years of experience। मैं यहाँ पर जाऊंगा, 4 वाले कितने भी है उन सबको लूंगा, उन सबका मीन निकालूंगा। 80,000 इज मे बी द आंसर हियर, करेक्ट। 6 के लिए भी सेम 100,000 में यहाँ पर प्रेडिक्ट करूंगा, करेक्ट। सो आई एम प्रेडिक्टिंग द न्यूमेरिकल वैल्यू। एग्जाम्पल्स थोड़े से यहाँ पर दिए हैं। हाउस प्राइजेस, हाउस का साइज कितना है, बेडरूम्स कितने हैं, कौन से फ्लोर पे है, ये सारी इंफॉर्मेशन अगर मेरे पास है तो मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ इस हाउस की प्राइस कितनी होनी चाहिए। मे बी ये नया घर अभी बन रहा है और मुझे पता करना है इसकी प्राइस कितनी है। तो मैं क्या करूंगा, आजू बाजू के घर लूंगा जो सिमिलर है इस नए घर के, और उनकी उनका कितना प्राइस है
उसके प्राइस से मैं डिसाइड करूंगा कि मेरा प्राइस कितना होना चाहिए, मैं कितना कोट करना चाहिए मैंने कस्टमर को व्हेन आई ट्राई टू सेल दिस हाउस. ओके. अनदर एग्जांपल, व्हाट विल द स्टॉक प्राइस बी टुमारो. कुछ इनपुट रहेगा, मे बी व्हाट इज टुडेज प्राइस, व्हाट इज टुडेज ओपनिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस, कंपनी का बैलेंस शीट अगर है, कुछ चेंज होता है तो वो इन्फॉर्मेशन, फिर उसके बाद में न्यूज़ में क्या आ रहा है कंपनी के बारे में, फिर पॉजिटिव न्यूज़ कितना है, नेगेटिव न्यूज़ कितना है, इस इंडस्ट्री में क्या हो रहा है ओवरऑल इन जनरल. तो ये सारी इंफॉर्मेशन जब मैं एज ए इनपुट लेता हूँ और मैं प्रेडिक्ट करना चाहता हूँ कि इस स्टॉक का प्राइस कितना होगा. राइट. सो दैट इज आल्सो अनदर एग्जांपल ऑफ सुपरवाइज्ड लर्निंग, स्पेसिफिकली रिग्रेशन. इनकम कितना होगा. करेक्ट. जैसे कि यहाँ पर देखा एग्जांपल, कितने वोट्स मिलने वाले हैं. ओके. दैट इज अगेन एन एग्जांपल ऑफ सुपरवाइज्ड लर्निंग. जैसे आपने थोड़ी देर पहले क्लासिफिकेशन का बताया, वैसे मुझे रिग्रेशन के एग्जांपल्स बताओ अभी. टेल मी अबाउट द इनपुट एंड आउटपुट. इनपुट एंड आउटपुट रिग्रेशन का. वेदर प्रेडिक्शन, ऐसे बताओ मुझे, व्हाट्स द इनपुट एंड व्हाट्स द आउटपुट. जस्ट डोंट टेल वेदर प्रेडिक्शन और एनीथिंग, डिटेल में लिखो आंसर्स. व्हाट्स द इनपुट एंड व्हाट्स द आउटपुट. दिस इज नॉट क्लासिफिकेशन, दिस इज अ क्लासिफिकेशन एग्जांपल. ब्लड प्रेशर से आपको आउटपुट हो रहा है हाई या फिर लो. So this is a classification. High low क्या है? This is an ordinal value or this is a categorical value. Okay, so this is not regression. This is classification. Blood pressure से आप predict कर रहे हो, is it high or low? Input health report, output how long the person will live. Correct. So this is a numerical value. Predict कर रहे हैं आप. Input आपके पास रिपोर्ट है, उसका BMI स्कोर, उसका एज अभी कितना है, एंड ऑल ऑफ दैट. कार की फीचर्स और प्राइस क्या रहेगा कार का. करेक्ट. मोर एग्जांपल्स. Input is a car feature, color, brand and so on. Stocks, prices. Okay, stock का प्राइस कितना रहेगा. ठीक है. You'll have more inputs, yeah. बस stock का नाम देके you cannot predict the price. You maybe have more information उसकी. But the correct example. Input weather condition of past days. Output. Input is total marks. Output is obtained marks. Isn't total mark and obtained mark same? Historical data predicting the population. Population कितना बढ़ने वाला है. ठीक है. Output is future weather. What do you mean by future weather? Speed of the air? What exactly? Be more specific, Pramod. Previously bought jeans output. What should be the preferred size? Correct. What should size is a numerical value. Historical sales and offers, and you are going to predict what is the future price. All right. Correct. How much can you expect in future to sell? Employee data, salary prediction. Correct. Pramod, can you give it a try? Give another example. Rash driving, total number of accidents by driver. Correct. This is also a good example. Total output is basically going to decide whether this is a regression or a classification. ठीक है. आपको जब पूछा जाए what type of algorithm do you use regression classification, तब आप बोलोगे what's the output. If the answer says it's a categorical variable, then it's a classification. If the answer says that it's a regression, sorry, it's a numerical value, then it's a regression. All right. I think I'll revisit this slide in some time. थोड़ी देर में आता हूँ मैं slide पे. Let's
किसी को एनी डाउट्स रिग्रेशन क्लासिफिकेशन के ऊपर? Anyone here is not understanding? If you don't understand, again, रुकना नहीं है next session तक. You have to ask the question in the same session that you are having doubts. ठीक है? Alright, move on. तो अभी हमने सुपरवाइज लर्निंग के बारे में पढ़ा. सुपरवाइज लर्निंग होता क्या है? इनपुट पता है, आउटपुट पता है, कुछ तो पैटर्न बिल्ड करना है. इनपुट और आउटपुट के बीच में क्या रिलेशनशिप है वो फाइंड आउट करना है, और मुझे पता चल जाएगा, मुझे एक रूल मिल जाएगा कि ये रिलेशनशिप है, और मैं प्रेडिक्ट कर पाऊंगा. मैं या तो प्रेडिक्ट करूंगा या फिर मैं उन दोनों के बीच का रिलेशनशिप को एनालाइज करूंगा या फिर अंडरस्टैंड करूंगा. दैट इज सुपरवाइज्ड. अभी उसको भूल जाओ. अभी हम लोग पढ़ते हैं अनसुपरवाइज्ड लर्निंग क्या होता है. अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में भी दो टाइप होते हैं. सबसे पहला होता है क्लस्टरिंग. जब आपके पास डेटा होता है और अगर आपको उस डेटा को ग्रुप करना होता है, अलग अलग ग्रुप्स में क्लासीफाई करना होता है, सॉरी, ग्रुप, अलग अलग ग्रुप में आपको क्लस्टर करना होता है, तो उसको बोलते हैं क्लस्टरिंग. एग्जाम्पल जैसे कि लेट लेट मी थिंक ऑफ अ सिंपलर एग्जाम्पल. एग्जाम्पल देखते हैं. मे बी आई थिंक आई हैव द एग्जाम्पल हियर. ओके, आई विल गेट टू द एग्जाम्पल ऑफ क्लस्टरिंग और वो समझ में आ जाएगा. डिमेंशनैलिटी रिडक्शन is also a type of unsupervised learning. Dimensionality reduction का मतलब होता है, अगर आपके पास 100 इनपुट्स है या फिर 100 डेटा पॉइंट्स या फिर 100 कॉलम्स है, तो आप वो 100 कॉलम्स को चेंज करके रिड्यूस करोगे टू मे बी हैव 10-20 columns. Okay, instead of having 100 columns, now you have 10-20 columns, but your 10-20 columns are not just any 10-20 columns, but these are the columns which hold all the information that is present in the 100 columns. Obviously, all the information is not possible, but it will at least hold some amount of information. Okay? That is an example of dimensionality reduction. Dimensionality reduction in itself is a little bit complex topic, but जब मैं example दूंगा, तो let me know if you understand. If you don't understand, I'll repeat that again. Okay? Example से अच्छे से clear होगा ये clustering and dimensionality reduction. Okay? तो क्लस्टरिंग में हम लोग सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं. आपके पास एक बॉक्स है और बॉक्स में अलग अलग तरह कलर के टॉयज हैं. ठीक है, कुछ कार्स है, कुछ बॉल्स है और कुछ डॉल्स हैं. ठीक है, और क्लस्टरिंग में आप क्या करते हो, जितने भी कार हो उन सबको आप एक ग्रुप में डालते हो, जितने भी बॉल है उन सबको आप दूसरे बास्केट में डालते हो, जितने भी डॉल्स है उन सबको आप तीसरे ग्रुप में डाल देते हो. ठीक है, अभी आपने क्या किया, आपके जो टॉयज थे अलग अलग टाइप्स के, इनको अलग अलग बास्केट में डाल दिया. ओके, नाउ द टास्क ऑफ पुटिंग देम इन अ डिफरेंट बास्केट इज कॉल्ड एज क्लस्टरिंग. राइट, नाउ ओनली डिफरेंस हियर इज, जब आपने उनको सारे कार्स को एक बास्केट में डाला, सारे बॉल्स को एक बास्केट में डाला और सारे डॉल्स को एक बास्केट में डाला, you know that this is a car, you know that this is a ball, and you know that this is a doll, and you are able to do that. Okay, computer will maybe not have an understanding of car, ball या फिर doll. It will just tell that these things look similar to me, इसलिए ये एक ग्रुप में जा रहे हैं. ओके, आपको वो ग्रुप के अंदर जाके चेक करना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा कि व्हाट एग्जैक्टली इज दिस कार. उसको आपको लेबल खुद देना पड़ेगा. ओके, मे बी alright, I'll just wait there. Let me just pause and try to think if there's a simple way of telling it. I think you guys must have understood, but let me just try this again. तो इमेजिन करो कि there's a रूम, और वो रूम बंद है अभी, और वो रूम के अंदर एक छोटा बच्चा है जिसको समझ में नहीं आता है कि कार क्या होता है, बॉल क्या होता है, फिर डॉल क्या होता है. उसको ये तीनों के बीच में डिफरेंस नहीं समझ में आता है. ठीक है, लेकिन उसको इतना समझ में आता है कि शेप समझ में आते हैं. ठीक है, ये अगर आपने उसको दो टॉयज दिखा दिए तो फिर वो बता सकता है इन दोनों का शेप सिमिलर है या फिर नहीं है. ओके जैसे कि बॉल राउंड होता है, राइट. अगर आपने उसको दो बॉल्स दे दिए तो फिर इट कैन टेल दैट
there is these two are similar to each other. Okay, that much we can tell, but he does not know कि ये बॉल है या फिर ये डॉल है या फिर ये कार है, ये उसको नहीं पता, उसको बस इतना पता है कि शेप सिमिलर है. दिस इज व्हाट ही कैन डू फॉर यू. तो आप क्लोज रूम में बहुत सारे टॉयज हैं, और you tell the kid to using the shape using the shape just group the toys that are present in this room. तो वो क्या करेगा, baby or that kid, he's going to just look at the different shapes and try to put them into one group. वो मे बी सारे कार्स को एक ग्रुप में डाल देगा. मे बी गलती से हो सकता है एक डॉल है जो कार के शेप की है, वो भी उसी ग्रुप में चले जाएगी. ठीक है, क्योंकि उसको पता नहीं है कि ये कार है, ये डॉल है. ऑल ही नोज दैट ये शेप के जो चीजें दिखते हैं ये सब एक ग्रुप में जाने चाहिए. जो चीजें राउंड दिखती है वो सब एक ग्रुप में जानी चाहिए. जो चीजें हाथ पैर बाल दिखते हैं वो सारे एक ग्रुप में जाने चाहिए. ऑलराइट. इसके अलावा कुछ ऐसे टॉयज रहेंगे जो कंफ्यूजिंग रहेंगे, जो बॉल में भी रह सकते हैं, जो कहीं भी रह सकते हैं, राइट. तो वो उनको रैंडमली में भी किसी भी ग्रुप में डाल देगा. आप अंदर जाओगे और आप देखोगे कि ठीक है, यहाँ पर 3 बास्केट पड़े हैं, और 3 बास्केट में खिलौने पड़े हुए हैं. ओके. अभी यू एज अ एंड यूजर, अभी आपको जाके उस बास्केट को लेबल करना है. तो आप वो बास्केट को ओपन करोगे, यू सी ऑल द कार्स इन इट, यू लेबल ऑन टॉप ऑफ इट दैट दिस इज अ कार. ओके. You go and open the basket of the balls and then you check all the balls are present inside it. आप उसको लेबल दोगे that these are the balls. Dolls वाले में जाओगे that these are the dolls. Okay. Now this labeling that you're doing is completely unknown to the child. Yes. Did someone raise the hand? Yes, Digvijay. Sir, is it like unlabeled grouping of unlabeled data? Yes. So that is what this clustering is. There is no labeling. Okay. Labeling है ही नहीं यहाँ पर कुछ भी. आपके पास सिर्फ डेटा है. ऑलराइट. ये डेटा को देख के आपको उसको ग्रुप्स में डिसाइड करना है कौन से ग्रुप में जाना चाहिए ये. ऑलराइट. ये ग्रुप्स की भी कोई अंडरस्टैंडिंग है नहीं अभी तक. लेबलिंग नहीं है यहाँ पर. लेबल का मतलब क्या होता है कि जो यहाँ पर एग्जांपल दिखा था हमने, दिस इज अ लेबल. ये डॉग है. ओके. ये कैट है. सो दिस थिंग इज अ लेबल. ओके. लेकिन अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में ये नहीं होता आपके पास. यू डोंट हैव दिस लेबल. ऑल यू हैव इज दिस इमेजेस. ये सारी इमेजेस है. ओके. राइट. डिड समवन रेज द हैंड? Sir, I think it was a message. Okay. Okay. All right. So Pramod is saying grouping the customers by their purchasing behavior, right? So this is an example of an clustering group, right? So this is a clustering. What more examples can you give me about the clustering? Grouping करना है मुझे. All right. मेरे पास लेबल डेटा नहीं है कुछ भी. All I have is just raw data. I have many books, और books का content देख के I can put the groups books into particular group, right? So maybe I have a group which has all the technology books. There's a group which has all the sociology books. There's a group which has all the non-fictional books and so on, right? So content देखा book का, उसके बाद में I decide that this goes into this group. Correct. Fruits को आपको group करना है उसके shape और size के ऊपर. So again that comes under supervised unsupervised learning or clustering. Grouping vehicles from a road like two-wheelers, four-wheelers, etc.
ग्रुपिंग डॉक्यूमेंट्स अकॉर्डिंग टू द टॉपिक, यस। डॉक्यूमेंट पढ़ोगे, उसके बाद में इफ यू सी दैट द कंटेंट इज सिमिलर, then to go into one group. If you see a content is dissimilar, then that should go to a different group. uh, See, I'm not using the word prediction anywhere here. I'm just saying similar, dissimilar, grouping, clustering. ठीक है, यहाँ पर कोई भी prediction नहीं है. Only thing that you predict, maybe if you want to do a prediction on unsupervised learning, is predict which group it belongs to. You're not predicting the grouping of businesses according to their services. Correct? सर्विसेज देखो कि कौन से सर्विसेज दे रहे हैं, और सारे हॉस्पिटैलिटी के एक ग्रुप में चले गए, सारे टेक के बिजनेसेस एक ग्रुप में चले गए, सारे एजुकेशन के एक ग्रुप में चले गए, सो ऑन. रूम किचन, यस, ग्रुपिंग बेस्ड ऑन द ओनली फीचर्स. यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन, ये क्लासिफिकेशन जब भी आता है, राइट, क्लासिफिकेशन इज again supervised learning. So this is not what grouping is. Grouping is something else. Grouping is group, you can say grouping of animals based on their features, such as उनका weight, या फिर उनका color, या फिर उनके eating habits, and so on. Grouping the users based on the content they consume. Correct. So that's also an unsupervised learning or clustering example. What else? So imagine करो, ये आपका sky है, okay, and in this sky you see certain stars here, right? So there are two stars here, there's one star here, there's couple of stars here, there's a couple of stars here, and a couple of stars here, and so on, right? So ये जो stars है, ये सारे एक ग्रुप में आ गए, okay? ये stars इस ग्रुप में है, ये stars इस ग्रुप में है, ये star इस ग्रुप में है, correct? Based on how far they are, you're grouping them कि वो कौन से ग्रुप में आने चाहिए. So this is an example of grouping. Obviously there are more details here ki kuch stars, some stars are far from you, that's why they're looking smaller, some are closer, that's why they're looking bigger and brighter. There's more details, but that's an example of clustering again here. So this is clustering. That's, बायोलॉजी के बहुत सारे एप्लीकेशन है क्लस्टरिंग के. दे ट्राई टू क्लस्टर बेस्ड ऑन द patterns of the chromosomes. Trying to see if there's a good example somewhere here. I think it's not chromosome, it's gene. I think this is some genes data, right? So we all have genes, and based on the genes, you can basically tell that these people belong to the same gene group. These people belong to the same gene group. These people who are having these genes belong to the same gene group. Okay. So this is an example of grouping the genes. पहले you just had these genes, these were not labeled, but इनको color दिया गया बाद में जाके.
Okay, now telling that this belongs to the same gene, this belongs to the same gene, this belongs to the same gene group. Just show an example. So before clustering, this is what your data was. All right, आपका डेटा कुछ इस तरह से था. You had some stars here, you had some stars here, you had some stars here. अभी यहाँ पर कुछ ग्रुप्स नहीं है. ऑलराइट, जब आप क्लस्टरिंग करते हो देन यू क्रिएट ग्रुप्स लाइक दिस, राइट? तो ये सर्कल एक ग्रुप हो गया, ये ओवल एक ग्रुप हो गया, ये सर्कल एक ग्रुप हो गया, राइट? सो नाउ यू हैव थ्री ग्रुप्स. ये ग्रुप्स क्रिएट करने का काम इज नथिंग बट क्लस्टरिंग. ये मैन्युअली तो इजी है, यू कैन इजीली डू दिस मैन्युअली, बट कंप्यूटर यूजेस सम एल्गोरिथम्स जिनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. ऑलराइट, आई थिंक दैट्स इनफ फॉर द क्लस्टरिंग. यू गाइस गेट द आइडिया. जब हम लोग और एग्जांपल्स देखेंगे डिटेल्स में, तब एल्गोरिथम्स देखेंगे, तब और क्लैरिटी आएगी, राइट? सो लाइक आई सेड मेनी टाइम्स, ये सारे टॉपिक्स फिर से रिवाइज होंगे, तो आपका रिवीजन होते रहेगा बार बार. बट फर्स्ट टाइम में समझ में नहीं आता तो जस्ट लेट मी नो स्टिल. Yeah. All right. Uh, so that was about clustering. All right. Now let's just talk about the dimensional detection. Let me grab some water. I need to drink. All right. So dimensionality reduction का अगर समझना है तो फिर हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर. आप सबने बचपन में पजल सॉल्व किए हैं. पजल्स जैसे जिग्सॉ पजल्स होते हैं, राइट? लेट मी जस्ट रिमाइंड यू ऑल. ये ऐसे क्लस्टर्स होते हैं पजल्स, ये सब आपको एक साथ जोड़ के एक इमेज बनानी पड़ती है. करेक्ट? You have to create one image using these small pieces. तो सेम एग्जांपल लेते हैं. इमेजिन करो आपको एक पजल बनाना है, और अभी जब पजल बनाना होता है, आपको बताया जाता है कि दिस इज व्हाट यू वांट टू बिल्ड. ऑलराइट, नाउ इफ यू वांट टू बिल्ड दिस, सबसे पहले बेस्ट स्ट्रैटेजी ये है कि इंपॉर्टेंट वाले जो पीसेस है वो फाइंड आउट करो. इंपॉर्टेंट पीसेस मतलब जहां पर ज्यादा डिटेल होती है. जैसे कि इफ देयर इज अ पीस व्हिच हैज लेट्स से द इमेज इज अबाउट दिस वन. लेट मी जस्ट हैव दिस jigsaw puzzle and just take. Okay, I think this is a good example. ठीक है, इमेजिन करो ये आपका जिक्सॉ पजल है. ऑलराइट, ये जो इमेजेस है, जैसे कि ये इमेज, हर एक पजल में कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन है, राइट? जैसे कि यहाँ पर बोट है, आधी बोट है, यहाँ पर कुछ झाड़ है. ऑलराइट, तो ये सारी पजल अगर मैं इसमें से इंपॉर्टेंट पीसेस निकाल लूं, जैसे कि इफ आई एम एबल टू आइडेंटिफाई कि ये पजल मुझे सबसे पहले मिल जाए, ये वाला, राइट? सो आई पुट इट हियर. उसके बाद में इफ आई फाइंड पीस विच हैज दिस इंफॉर्मेशन, और मैं इसको यहाँ पर डाल दूं. राइट, एंड इफ आई फाइंड मोर इम्पोर्टेंट पीसेस, सारे पीसेस, बहुत सारे पीसेस एक जैसे हैं, राइट? सो दीज टू पीसेस आर वेरी सिमिलर टू ईच अदर. सो ये मिल जाए तो ठीक है, आई कैन फिल दिस टू, आई कैन क्रिएट दिस होल ट्री. बट ओवरऑल मेरा गोल है ये पूरा पजल क्रिएट करना, या फिर ये पूरा पजल सॉल्व करना. तो माई फोकस शुड बी टू फर्स्ट आइडेंटिफाई द इंपॉर्टेंट पीसेस इन दिस. राइट, और वो इंपॉर्टेंट पीसेस कुछ ही रहेंगे, मे बी 10 to 12 पीसेस आर इंपॉर्टेंट आउट ऑफ द 25 or 30 pieces that I see here. So identifying that 10 to 20 pieces is what comes under dimensionality reduction. So although you have hundreds of columns, or although you have hundreds of information, your goal is to just use some information, just a few columns which are important.
all right. And when I say you're going to use sum columns, it's actually not directly those sum columns, but उसके अंदर भी थोड़े से और details होते हैं. But I don't want to get into more uh, uh, complexities there. Just to keep it simple, just imagine करो कि एक पजल है, आपको सॉल्व करना है, और ये पजल में से कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि इंपॉर्टेंट पीसेस है. अगर आपने वो आइडेंटिफाई कर ली तो आपका पजल सॉल्व हो जाएगा. इनफैक्ट अगर ये पजल जो है, अगर ये पजल में से मैं कुछ पीसेस निकाल भी दूं, ऑलराइट, कुछ पीसेस निकाल भी दूं, तो भी आप गेस कर सकते हो ये किसका इमेज है. करेक्ट. ये जो पजल है, कहाँ है, सॉरी, थिंक आई मिस्टेकन बेस्ट एस्केप. कहाँ गया वो इमेज? मे बी आई जस्ट यूज दिस वन, सॉरी. अगर ये पजल में अगर 50 पीसेस है, अगर ये 50 में से मैं कुछ पीसेस निकाल भी दूं, राइट, सो ये पीस निकाल दूं, ये पीस निकाल दूं, मे बी ये पीस निकाल दूं, ये निकाल दूं, ऐसे कुछ 20-25 पीसेस निकाल भी दूं, तो भी आप ये इमेज किसका है वो बता सकते हो. यू कैन टेल दैट दिस इमेज इज अबाउट अ पाम ट्री, देयर इज अ ओशन, मे बी दिस इज अ बीच इमेज, राइट. अगर मैं इसमें से थोड़ी पीसेस निकाल भी तो भी आप बता सकते हो कि ये क्या एग्जैक्टली exactly है. So this is what exactly happens in dimensional regression. You don't have all the pieces. Sorry, when you have all the pieces, you only want to keep the pieces which gives you most information, और बाकी अगर आपके lost भी हो जाए और निकाल भी दो तो भी आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए. You will still be able to solve the problems. And dimensionality reduction has many applications, especially जब images होते हैं ना, जो कंप्यूटर को हम लोग देते हैं कि इमेजेस दे दिए और वो प्रेडिक्ट करता है इज इट अ डॉग, कैट और समथिंग एल्स, उस वक्त डिमेंशनैलिटी रिडक्शन होता है. बट देयर इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ डिमेंशनैलिटी रिडक्शन. वहां पे सीएनएन नाम का एक नेटवर्क, न्यूरल नेटवर्क्स का न्यूरल नेटवर्क्स होता है, आर्किटेक्चर होता है, वो यूज होता है. वो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे बाद में, बट अभी के लिए बस इतना इमेजिन करो कि डिमेंशनैलिटी रिडक्शन मतलब कुछ कुछ इंफॉर्मेशन निकाल दो और उतनी इंफॉर्मेशन रखो जो जितनी आपको यूजफुल है. थिंक आई हैव टॉक्ड अ लॉट ऑन डिमेंशनल रिडक्शन. जब हम लोग पढ़ेंगे तब ज्यादा क्लियर होगा. ओके, लेट्स सी इफ समवन कैन गिव एन एग्जांपल ऑफ डिमेंशनल रिडक्शन. आई नो इट्स अ लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स वन. हो सकता है ये एग्जांपल से समझ भी नहीं होगा, बट लेट्स सी if you guys can give it a try. Just tell me what's the input. एक वीडियो होगा 1 घंटे का, और वो 1 घंटे के वीडियो में अगर आपको पता करना है कि ये वीडियो किसके बारे में है, डू यू नीड द फुल वीडियो और यू कैन ओनली हैव मे बी जस्ट 5 minutes स्नैपशॉट ऑफ दैट, यू कैन टेल ये वीडियो किसके बारे में है. करेक्ट. दैट्स ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ आपके पास 1 घंटे का वीडियो एंड यू आर नॉट वॉचिंग द फुल वीडियो, यू आर जस्ट लुकिंग एट फ्यू minutes and telling what this video is about, or that's an example of dimensional reduction again, right? So trailer of the movie, you are reducing the movie into something else. Sorry, I think I misused the word predict there. We are not predicting. uh, Eventually we'll be predicting, but that's a next step of dimensionality reduction जब हम लोग उसको supervised learning में use करते हैं. So what happens is this. Okay. uh, So demonstrations. Correct. So demo sessions is an example of what exactly we are going to do, and that will give you an idea if this course is for you or not. Images and prediction. Or- तो डिमेंशनैलिटी रिडक्शन जो है ना, अभी ये मेरे पास इमेज है, राइट. आई डोंट नो अबाउट दिस लेबल्स, लेबल्स के बारे में मुझे पता नहीं है, ये सिर्फ इमेज है मेरे पास में. मैं ये इमेज को लेता हूँ और इस इमेज को थोड़ा सा कंप्रेस करता हूँ. ओके, इसको थोड़ा कंप्रेस करता हूँ, एंड दैट कंप्रेशन इज एन एग्जांपल ऑफ डिमेंशनैलिटी रिडक्शन. इसका डिमेंशन कितना है? नंबर ऑफ पिक्सल्स, width, number of pixels, height. So maybe this is 128 by 128 image. Okay, so that is the dimension of this image. उसको जब मैं 64 by 64 करता हूँ, so that's an example of dimensionality reduction. अलग अलग टेक्निक्स है वो करने के.
कंप्रेशन करने के, लेकिन मैं कंप्रेस कर सकता हूँ. सो दैट इज वेयर डिमेंशनल रिडक्शन इज यूज्ड. ताकि जब ये इनपुट करने के लिए जाएगा मेरे सुपर लर्निंग को, तब छोटी इमेज जाएगी, क्योंकि बड़ी इमेज में से जो इन्फॉर्मेशन निकलने वाले वही छोटी इन्फॉर्मेशन, छोटी इमेज से अगर निकलती है, देन व्हाई डू आई नीड टू प्रोसेस द फुल big 128 by 128? I can just maybe use a 64 by 64 and do the same thing. And processing a 64 by 64 image is very uh, easier than processing a 128 by 128 for a computer at least. Okay, for humans maybe जितनी ज्यादा बड़ी इमेज, जितना ज्यादा डिटेल्स, उतना अच्छा आपके लिए, बट कंप्यूटर के लिए प्रोसेसिंग वो भी अच्छा होता है, बट इट हैज टू प्रोसेस मिलियंस ऑफ सच इमेजेस. और जब मिलियंस ऑफ सच इमेजेस करना होता है, तो टाइम एंड रिसोर्सेज इज important thing, जो which you don't have unlimited time and you don't have unlimited resources. तो कम से कम रिसोर्सेज में ज्यादा से ज्यादा अच्छा मॉडल बिल्ड करना है, तो उसके लिए आपको इसको डिमेंशनलिटी रिडक्शन करना पड़ता है इनके ऊपर, इनपुट के ऊपर. फिर आप उसको प्रेडिक्शन में यूज करोगे. So that in that context I said prediction, but dimensionality reduction has nothing to do with the prediction. You can do dimensionality reduction even when you don't want to predict anything. Compressing the files is also an example of dimensionality reduction. Zip files create करना. But जब हम लोग examples देखेंगे डिटेल में, it will yeah, so these are, so you get an idea. Okay, so this is a gist, or this is the gist of the idea why we want to do the uh, dimensionality reduction, because you cannot watch the full match, but if you create a highlights, then that's as good as watching a match. Obviously details नहीं रहेंगे उसमें सारी, लेकिन most of the information is captured in the highlights, right? So that's a good example of a dimensionality reduction again. All right, now let's try to wrap it up. So coming back to a story of Apgar score. So what Dr. Apgar did was, उन्होंने डिसाइड किया कि जब भी एक बेबी बॉर्न होगा, तो उस बेबी के ये 5 चीजें हम लोग नोट डाउन करेंगे. उसका अपीयरेंस कैसा है, उसका पल्स कितना है, उसका ग्रिमेंस या फिर वो कैसा रोता है, ओके, उसकी एक्टिविटी कितनी है, और उसका रेस्पिरेशन कितना है. ऑलराइट, और उनको स्कोर दिया जाएगा. अगर उसका अपीयरेंस पिंक है, उसका स्कोर 2 रहेगा. अगर उसका अपीयरेंस ब्लूज है हाथ और पैरों में, तो उसको स्कोर 1 दिया जाएगा. अगर उसका अपीयरेंस पेल या फिर ब्लू कलर होगा, तो उसको स्कोर 0 दिया जाएगा. ओके, ये इसका अपीयरेंस स्कोर है. पल्स के बारे में भी सेम. अगर उसका पल्स 100 बीट्स पर मिनट से ज्यादा है, तो इट्स अ स्कोर ऑफ 2. इट इज लेस देन 100, स्कोर ऑफ 1. पल्स नहीं है, स्कोर ऑफ 0. ओके, तो ये हो गया आपका एपगर स्कोर. तो ऐसे उन्होंने बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ बेबीज का स्कोर लिख के रखा. उसके ऊपर से उन्होंने पैटर्न्स निकाले. राइट, पैटर्न्स क्या थे? सो एवरी स्कोर, मैक्सिमम स्कोर 2 का हो सकता है और मिनिमम स्कोर 0 का हो सकता है. तो टोटल एपगर स्कोर, इफ यू गेट अ 2 ऑन एवरी मेट्रिक हियर, देन इट्स अ वैल्यू ऑफ 10. सो 10 में से स्कोर रहता है, 0 to 10 स्कोर रहेगा. 10 इसका मतलब baby is healthy and everything is good. 9 मतलब maybe there's some issues which can be solved or which needs to be taken care of. Correct? तो out of 10 कितना स्कोर देना है आपको एपगर के ऊपर? तो उन्होंने पैटर्न फाइंड आउट किए कि बेस्ड पैटर्न्स कौन से, बेस्ड ऑन दीज पैटर्न्स शी सेड अपीयरेंस के ऊपर इतना स्कोर दो. जब ये अपीयरेंस होता है तब ये स्कोर रहना चाहिए, जब ये अपीयरेंस रहता है तो ये स्कोर रहना चाहिए, जब ये एक्टिविटी रहेगी तब उसका स्कोर ऐसा रहेगा, जब एक्टिविटी कम रहेगी तब स्कोर इतना रहेगा. राइट, सो ऑल ऑफ दिस डेटा शी कैप्चर्ड एंड शी क्रिएटेड द पैटर्न्स. ऑलराइट, और उसके ऊपर से नेक्स्ट टाइम जब व्हेन अ न्यू बॉर्न बेबी, new baby was born in the hospital, the nurses would just
write down the score based on what they think it is, or they'll give an APGAR score, and that will basically standardize and tell what is the health of the बेबी. और अगर ये बेबी को आप किसी और हॉस्पिटल में लेके जाओगे, वहां पर भी वो पूछेंगे व्हाट वाज द एपगार स्कोर ऑफ दिस बेबी व्हेन ही वाज बोर्न. और जब आप उसको उनको एपगार स्कोर बताओगे कि इतना था, दे विल अंडरस्टैंड इफ द बेबी वाज हेल्दी व्हेन ही वाज बोर्न और नॉट, राइट? एंड यू कैन टेक दिस स्कोर एनीवेयर, एंड इट्स अ स्टैंडर्डाइज्ड वे ऑफ टेलिंग द हेल्थ ऑफ अ बेबी, न्यू बॉर्न बेबी. ऑब्वियसली और भी चीजें होती है, बट दिस वाज स्टार्टेड बाय डॉक्टर वर्जिन इन 1950s, जब डेटा कैप्चर नहीं होता था और एक स्टैंडर्डाइज्ड मेथड नहीं था कि बेबी हेल्दी है या फिर नहीं है ये पता करने के लिए. ऑलराइट. तो जो भी वाइटल साइंस थे, जो भी हेल्थ के इंडिकेटर्स थे, उन सब के बारे में इंफॉर्मेशन उन्होंने कैप्चर की और रिलेशनशिप फाइंड आउट किया एक हेल्दी बेबी के बीच में और एपगार स्कोर के बीच में. ठीक है, हेल्दी बेबी, इफ द बेबी इज हेल्दी और नॉट, राइट? इनपुट क्या है उसका, एपगार स्कोर. क्या क्या रिलेशनशिप है, वो रिलेशनशिप फाइंड आउट किया और उन्होंने वो पैटर्न बेसिकली आइडेंटिफाई किया ताकि सब लोग उसको यूज कर सकें. सो दैट्स एन एग्जांपल ऑफ सुपरवाइज्ड लर्निंग, एंड दिस इज अ वेरी ओल्ड एग्जांपल और क्रूड एग्जांपल. ऑब्वियसली अभी बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं और ये सारे एप्लीकेशंस कंप्यूटर में है. कंप्यूटर आपके लिए करके देगा. आप इमेज निकालोगे बेबी का, फिर एक छोटा सा वीडियो निकालोगे, दैट कंप्यूटर विल बेसिकली बी एबल टू टेल यू अबाउट many features of the baby. What's the APGAR score? What's the health of the baby looking like, and all of that. Okay, so uh, we have very advanced methods these days, but back in the day they didn't have many advanced methods. वो बस स्टेथोस्कोप लगा के रेस्पिरेटरी रिफ्लेक्सेस कलर देख के बताते थे. Alright, so that's an example of a supervised learning where the patterns were identified, relationship between the healthy baby and the input was identified. Okay, manually किया जाता था तब, but now we have more advanced methods. All right, I think that's it for today. Again, this image is going to be shown to you couple of times in many sessions. Just keep looking at this image. जब हम लोग पढ़ेंगे इस पर्टिकुलर साइकिल के बारे में, तब ये एक इमेज में क्या है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे बार बार. ठीक है, जस्ट कीप लुकिंग एट दिस इमेज अगेन एंड अगेन एवरी टाइम व्हेनेवर यू गेट अ चांस. ओके, दिस इमेज इज नथिंग बट हमें स्टेप्स क्या फॉलो करने होते हैं डेटा साइंस के प्रोजेक्ट में, वो स्टेप्स यहाँ पर लिखे हुए हैं. बिफोर you all go, I would like to show you about the हमारा टेक्स्ट बुक कौन सा है. ठीक है, I want